In this lecture, we start with the lemma. If a field F has Q elements, then F is a splitting field of, we take P power n elements. Splitting field of this polynomial over its prime subfield. We know that if a field has finite number of elements, then these are p raised to power n, where p is a prime and n is a natural. So any finite field have elements in this form, and we want to prove that F is a splitting field of this polynomial over its prime subfield. Since non-zero elements of a field form a group under multiplication, therefore let non-zero elements of field ले लिया हमने, उसको नाम दे दिया G का. So G is a group under multiplication and order of G is p raised to power n minus 1. एक एलिमेंट कम हो गया. Now for each A belongs to G, A raised to power, if we let's take for our convenience, P raised to power n is Q. So A raised to power Q minus 1 is 1. So इसमें कितने एलिमेंट हो गए? Q माइनस 1 एलिमेंट्स हो. ठीक है. तो कोई भी इसका ऑर्डर अगर Q माइनस 1 है तो कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी पावर Q माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा. दिस इज बाय ग्रुप थ्योरी. सो दिस इंप्लाइज A raised to power Q is equal to A. क्लियरली 0 की पावर करेंगे Q तो वो 0 ही आएगा. इसमें सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स सेटिस्फाई करके A Q इक्वल टू A आ गया. तो जो 0 बच गया उसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इसका मतलब क्या हुआ? अभी सभी F के सभी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए. 0 भी कर गया. सो फॉर ऑल B बिलोंग्स टू F, B Q इज इक्वल टू B. देयरफॉर सभी एलिमेंट्स F के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए. इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ F, दिस इंप्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ F इज ए रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल xq माइनस x. नेक्स्ट है हमारे पास if P is the prime subfield of F, then so this we have, therefore this polynomial will be over P. This polynomial is over P and cannot have more than
Q roots in any field extension of P, in any field extension of P। तो ये थ्योरम हमने की थी। वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम दैट जितनी भी उसकी डिग्री है उससे ज्यादा रूट उसकी फील्ड एक्सटेंशन में नहीं होंगे। पी की जो फील्ड एक्सटेंशन है उसमें क्यू से ज्यादा रूट नहीं होंगे जितनी उसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की। So all the roots of this are in F। तो सभी रूट्स F में आ गए। ये अभी हमने पहले वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी। अगर सभी रूट्स इसके F में आ गए, therefore F is the splitting field of this polynomial। Therefore F is the splitting field of this polynomial over P। अब इसको क्या लिख सकते हैं? This, because Q is P raised to power n। So F is the splitting field of this polynomial over P। This we want to prove। Next we have a theorem that for any prime P, किसी भी प्राइम P के लिए और किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए हमें फील्ड मिल जाएगी P raised to power n एलिमेंट्स की। This is a theorem by E.H. Murray that for every prime P and natural number n, there exists a field having P raised to power n एलिमेंट्स। मीन्स कोई भी प्राइम ले लें हम, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें हम, तो हमें ये फील्ड मिल जाएगी। वी हैव फील्ड ऑफ P raised to power n एलिमेंट्स। कोई भी प्राइम नंबर ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें। दिस इज बाय दिस थ्योरम E.H. Murray। Now proof of the theorem। Consider fx is equal to this polynomial को कंसीडर कर लेते हैं हम। This is a polynomial over Zp। fx is a polynomial over Zp because Zp is the prime subfield of F। Since F is a finite field, अगर कोई भी फाइनाइट फील्ड है उसकी हम प्राइम सब फील्ड क्या लेंगे? Zp लेंगे। अगर इनफाइनाइट फील्ड है तो उसकी प्राइम सब फील्ड हम Q लेंगे। Let K be the splitting field of this polynomial over Zp। We claim that K is a field having P raised to power n एलिमेंट्स। हमने ये क्लेम करना है।
Now derivative of fx is p raised to power n x, p raised to power n minus 1 because characteristic of f is p, zp, zp is p, सो जो p के मल्टीपल होंगे वो 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देयरफॉर f डैश x क्या आ गया, -1, ये नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है, f डैश x है कांस्टेंट, अगर कुछ भी पुट करेंगे इसमें तो ये -1 ही आएगा, 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब f डैश को कोई रूट है ही नहीं है, तो इसका अगर कोई रूट नहीं है, देयरफॉर fx and f dash x have no common root, इनका कोई कॉमन रूट नहीं बनेगा। अगर इनका कोई कॉमन रूट नहीं है तो k में भी इनका कोई कॉमन रूट नहीं होगा, क्योंकि k स्प्लिटिंग फील्ड है। देयरफॉर fx हैज, अगर कॉमन रूट नहीं होता तो हम कहते हैं कि fx के पास मल्टीपल रूट नहीं है, ये हमने पहले लेमा किया था। देयरफॉर fx हैज नो मल्टीपल रूट इन k में कोई भी मल्टीपल रूट है उसकी स्प्लिटिंग फील्ड में। thus therefore fx हैज p रेज टू पावर n, जितनी डिग्री है उतने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे k में, हैज p रेज टू पावर n डिस्टिंक्ट रूट्स इन k में इसके डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लेट L be the set of all roots of fx in k, सारे रूट्स जो k में उनको हमने उसको हमने L का नाम दे दिया, उस सेट को ऑफ x इन k, उसको क्या सही रहा, लेट L हैज, अब L के पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, p रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी रूट्स हैं हमने वो L में डाल दिए, तो L हैज p रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स। तो क्लियरली इस पॉलिनोमियल को 0 भी सेटिस्फाई करता है और 1 भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 0 और 1 दोनों इसके रूट हो गए इस पॉलिनोमियल के, तो 1 को बिलोंग करेंगे। देयरफॉर 0 एंड 1 बिलोंग्स टू L। Let A B belongs to L, then अगर A भी L के एलिमेंट है, L में कौन से एलिमेंट है जो इस पॉलिनोमियल के रूट है, दिस इम्प्लाइज A रेज़ टू पावर Pn इज इक्वल टू A, B रेज़ टू पावर Pn इज इक्वल टू B। हमने एक लेमा प्रूव किया था कि सिग्मा फ्रॉम ए का इमेज है A रेज़ टू पावर सिग्मा इज ए मैपिंग फ्रॉम D टू D, ये हमने लेमा प्रूव किया था। So therefore we have eta from k to k monomorphism such that eta c
इज इक्वल टू सी पी रेज टू पावर n, where C belongs to K for every. This is a monomorphism. देन अगर मोनोमॉर्फिज्म है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए माइनस बी। इसका इमेज क्या है, सी रेज़ टू पावर पी एन। इसका इमेज क्या आएगा, इसकी पावर पी एन आ जाएगा, और इसका आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव किया था बाय बाइनोमियल थ्योरम, इसका आंसर इसके बराबर होता है अगर जो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है वो पी है। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक पी है तो जिसकी ओवर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल ओवर जेड पी है, और जेड पी की कैरेक्टरिस्टिक भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, और इसकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है बी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। इसका मतलब ए माइनस बी भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसकी पावर पी एन भी यही आएगी, तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे आ जाए एक्स एक्स सेम, तो ये एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ए माइनस बी इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और जो भी इस पॉलिनोमियल का रूट है वो एल को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी एल को बिलोंग करेगा। एंड अब ए तो एल का एलिमेंट है ही, एक बी एलिमेंट ले लेते हैं एल का, तो हमने प्रूव करना है कि ये भी एल को ही बिलोंग करता है। तो इसका इमेज देखेंगे ईटा के अंदर, तो दिस इज, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का केस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज, इसकी इमेज क्या आएगी, ए बी रेज टू पावर पी एन, और ये इसके बराबर आ जाएगा। इसका इमेज क्या आएगा, ए रेज टू पावर पी एन, और इसका क्या आएगा, बी रेज टू पावर पी एन माइनस। सो दिस इज इक्वल टू, अब ए पी एन का क्या मतलब है, ए, इसका क्या मतलब है बी, ए, इसका क्या मतलब है ए पी एन, ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए और बी एल के एलिमेंट है, तो ये इसके रूट्स है, इसका ये हमने पहले भी लिखा था। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी इनवर्स की पावर पी एन करेंगे तो ये आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। अगर सेम नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये भी रूट आ गया, दिस इज आल्सो रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, hence AB inverse belongs to L. Therefore हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए बी एल के एलिमेंट है और बी नॉन जीरो भी ले लें, तो ए माइनस बी भी एल को बिलोंग कर गया, और ए बी इनवर्स भी एल को बिलोंग कर गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एल हो जाता है सब फील्ड ऑफ के। दिस इंप्लाइज एल इज ए सब फील्ड ऑफ के, since L contains all roots of fx, अगर L fx के सभी रूट्स कंटेन करता है तो L क्या बन जाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx। Therefore L is the splitting field
of fx, स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा। हेंस और L सब फील्ड है K की, और L स्प्लिटिंग फील्ड भी है, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू K, क्योंकि K भी स्प्लिटिंग फील्ड है, हमने शुरू में ही लिया था। ठीक है, K स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस। अब दोनों ही स्प्लिटिंग फील्ड आ गई दिस पॉलिनोमियल की, दोनों ही स्प्लिटिंग फील्ड है, एल बी और के बी, लेकिन एल के में कंटेन्ड है, तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है? स्मॉलेस्ट फील्ड दैट कंटेन्स ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब कि दोनों को बराबर होना पड़ेगा, कि स्प्लिटिंग फील्ड इज स्मॉलेस्ट, दोनों ही स्प्लिटिंग फील्ड है, तो स्मॉलेस्ट है तो के एल के बराबर आ जाएगी। देयरफॉर एल इज इक्वल टू के। दिस क्योंकि एल में कितने एलिमेंट है, एंड एल हैज p रेज टू पावर n एलिमेंट्स, क्योंकि एल में सिर्फ हमने वही एलिमेंट्स लिए हैं जो fx के रूट्स हैं, तो fx के कितने रूट्स हैं? p रेज टू पावर n, तो एल में कितने एलिमेंट आ गए? p रेज टू पावर n, तो k में भी कितने एलिमेंट आ जाएंगे? p रेज टू पावर n। देयरफॉर k हैज एग्जैक्टली p रेज टू पावर n elements. This we want to prove. Thank you. Very thank